हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस एंड एज यू नो कि MCO 03 का जो पेपर था इट वाज वेरी गुड एंड most of the people, I mean students, have performed well in the exam. And in this particular video we'll be starting with MCO 06 and let's see few important questions. But before that let me tell you कि MCO 06 काफ़ी unpredictable पेपर है and direct questions काफ़ी कम मिलते हैं, तो you are advisable also to solve the last 3 years question paper of MCO 06 marketing management. From unit 1 introduction to marketing, you should know what is this marketing management all about. And also one thing that watch my previous videos of MCO 06. Quite a lot of videos are there, so you can go to the the playlist where you can find the whole of the videos lot in the playlist, right? So marketing management के बारे में and इसके philosophies, how like this management, I mean marketing management is related with different philosophies. तो इसके अंदर जैसे प्रोडक्शन फिलोसॉफीज़ है, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोशल। तो ये सब फिलोसॉफीज़ हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन में बेसिकली like the production department is informed by the marketing management about what to produce. And again like product concept के अंदर you can write like which type of products are mostly demanded by the customers in the market. Selling concept में like how to sell the product in the market, and society concept में like how to look after the society, because it is the society which provides all the factors of production and also consumes the different products. Then you should revise the different processes of marketing management, how you will do marketing management as a marketing manager. So first of all you will analyze the marketing environment. As we know, different types of environments are there, micro and macro, and you must analyze the different environments to find the strength and weaknesses. Then you will select one particular market where you will do all the research, and then you will try to develop the marketing mix. Marketing mix, as we know, 4 P's, तो जिसके अंदर प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, तो ये चारों के बारे में आपको डिफाइन करना है. देन यू विल इम्प्लीमेंट योर प्लान्स इन द मार्केट. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर इन वेरी शॉर्ट. One more difference you can work out between selling and marketing. Very common question. Okay, now these are the different functions of marketing, like to collect market information, to do market planning, to standardize and grade the products, then to look after the packaging and grading of the products. Then comes branding, how to do branding, then how to provide the customer support services. Then comes how to fix the prices of the product, and then looks after the promotion part, I mean advertising, branding, sales promotion schemes. तो ऐसे बहुत सारे हैं. Then to select a particular channel of distribution, क्योंकि बहुत टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो ये मार्केटिंग मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि विच चैनल is more suitable for its product. Then comes transportation, how to move the products from factories or warehouses to the marketplace. And lastly warehousing. तो functions बहुत सारे हैं, तो इसमें से कोई भी 7-8 functions भी आप अगर define कर लेते हैं एग्जाम्स में तो that is well and good. Okay, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूनिट 2 के तरफ. एंड फ्रॉम हियर मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए. एज वी नो, माइक्रो एंड मैक्रो 2 टाइप के एनवायरनमेंट है. एंड माइक्रो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर कस्टमर्स, सप्लायर्स, रीसेलर्स, कॉम्पिटिटर्स और जनरल पब्लिक के बारे में स्टडी किया जाता है. एंड मैक्रो एनवायरनमेंट्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द द कंपनी. एंड इसके अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एंड टेक्नोलॉजिकल. एक और एनवायरनमेंट है लीगल एनवायरनमेंट, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. वेरी कॉमन क्वेश्चंस. मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड हाउ डू दे अफेक्ट द मार्केटिंग मैनेजमेंट. देन one more, that is the various government regulations affecting the marketing in India.
तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के लॉज हैं, एक्ट्स हैं, जहाँ पे मार्केटिंग आई मीन टू डेवलप ए हेल्दी मार्केट इन इंडिया, तो ये सारे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो इसके बारे में भी बिल्कुल पढ़ के जाएं। एंड द डिफरेंट एक्ट्स विच आर पास्ड इन रिलेशन टू मार्केटिंग, आई मीन टू डेवलप ए गुड मार्केटिंग, आई मीन मार्केट इन इंडिया। तो ये कुछ एक एक्ट हैं, यहाँ पे 10 एक्ट्स के बारे में मैंने लिखा है। तो इसके अंदर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, MRTP एक्ट 1969, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये कुछ एक्ट हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। You can get short notes and even in the long questions. Okay, आगे चलते हैं। MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च सिस्टम। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब जब मार्केटिंग मैनेजर रिसर्च करवाता है तो कुछ एक सिस्टम्स फॉलो करने होते हैं उसको। तो ये हैं, सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है कि जो एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको अगर डेवलप करना है तो क्या क्या फैक्टर्स मार्केटिंग मैनेजर को ध्यान देने होंगे। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ नीडेड बाय द कंपनी, देन व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम वेयर दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। देन यू विल इवेलुएट कि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है हाउ ट्रूथफुल एंड हाउ रेलिवेंट दोज इंफॉर्मेशन आर, and then you will select the best source of information and then you will take the decision and supply your decision to the management. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके मेन पिलर्स क्या हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इसके अंदर एक तो इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम आती है जो कंपनी से मिलती है, सेल्समैन से मिलती है। एंड दूसरा है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे प्रोफेशनल पीपल आर हायर्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट। एंड एक और तरीका है दैट इज़ मार्केट रिसर्च सिस्टम। ये भी लेंदी प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जहाँ पे कंपनी कंप्रिहेंसिव रिसर्च कंडक्ट करती है मार्केट में। एंड लास्टली एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे भी बेसिकली एक एक प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है इन द मार्केटिंग सिस्टम। ओके, एक डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आता है। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट मार्केटिंग रिसर्च एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च परफॉर्म्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर। तो एक मार्केटिंग मैनेजर ये 7 टाइप के रिसर्च कर सकता है। बेसिकली मार्केट रिसर्च ये तो कॉमन रिसर्च है, कंज्यूमर को बेस करके रिसर्च करता है टू फाइंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर मोस्टली डिमांडेड, जो प्रोडक्ट चलते हैं मार्केट में उसके बारे में। एंड देन प्राइसिंग, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स के प्राइस क्या हैं एंड अकॉर्डिंगली द मार्केटिंग मैनेजर एडवाइसेस टू फिक्स द प्राइसेस। एडवर्टाइजिंग रिसर्च, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के बारे में रिसर्च किया जाता है एंड द डिफरेंट वेज बाय विच द कंपनी कैन डू द एडवर्टाइजमेंट, तो इसके बारे में। देन डिस्ट्रीब्यूशन, आई मीन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एंड देन सेल्स रिसर्च। तो ये कॉमन है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग ईजिली लिख सकते हैं। एंड कम्स देन प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, हाउ यू विल डू द रिसर्च। तो सेम जो एक कॉमन रिसर्च में जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वही है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम क्या है, उसकी सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। देन रिसर्च डिज़ाइन डेवलप करना है। देन यू विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। देन यू विल एनालाइज द डेटा, एनालिसिस करनी है, आई मीन एग्जामिन करनी है। एंड लास्टली यू विल प्रिपेयर द रिपोर्ट्स एंड गिव इट टू द मैनेजमेंट। तो इतना सिंपल है मार्केटिंग रिसर्च का स्टेप्स। देन कम्स बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पे बायर्स बिहेवियर एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बायर्स बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग भी बायर हैं एंड कभी भी हम लोग जब परचेस करते हैं तो कुछ एक फैक्टर्स हैं, आई मीन चारों में से एक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं। तो उसके अंदर जैसे एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया, ड्यू टू सम पर्सनल फैक्टर्स वी परचेज
कुछ एक सोशल फैक्टर है विच कंपेल्स अस टू परचेज, एंड कुछ एक कल्चरल। तो साइकोलॉजिकल में बेसिकली वी आर मोटिवेटेड, इन्फ्लुएंस्ड बाय सम प्रोडक्ट्स। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर अगेन ये मोटिवेशन, परसेप्शन एंड लर्निंग, तो ये 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस, तो ये चीज़ें हम मोटिवेट हो सकते हैं, या फिर हम परसीव कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अपने को लेना ही लेना है, या फिर लर्न कर सकते हैं दूसरों से बाय ऑब्जर्विंग द अदर्स। सो लाइक दैट। कुछ एक पर्सनल फैक्टर्स होती हैं विच अफेक्ट द बाइंग डिसीजन। एज रिलेटेड, द यंग पीपल एंड द ओल्ड पीपल, दे हैव डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट डिमांड्स। लाइक दैट ऑक्यूपेशन, जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक इंजीनियर्स या डॉक्टर्स, उनकी डिमांड अलग होती है, एंड जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी डिमांड अलग होती है। सो थोड़ा सा फ़र्क तो होता ही है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक नीड्स। एंड देन इनकम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है ये। एंड इनकम, मोर द इनकम मोर विल बी द कंजप्शन, दैट इज़ द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ एक सोशल फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम लोग परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि किसी ने फ्रेंड ने बोल दिया, रिलेटिव्स ने बोल दिया, नेबर ने बोल दिया, या फिर कुछ एक सोशल स्टेटस की वजह से हम लोग परचेज करते हैं। एंड सम कल्चरल फैक्टर्स आर देयर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, देन कम्स स्टेजेस इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस। तो जब व्हेनेवर वी ट्राई टू बाय गुड और सर्विस, तो सबसे पहले जो आती है दैट इज नीड एरोजल। वी फील अ नीड फॉर द प्रोडक्ट, देन वी ट्राई टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, then we try to evaluate the different choices, alternatives which are available in the market, and then we make the actual purchase decisions. And also we expect some post purchase behavior, the feedback. So after using the product, how is the product, उसके बारे में feedback, so that अगर आपको वापस परचेज करना है कि नहीं करना है, so that depends on your feedback. Okay, यूनिट 5 में बात करते हैं मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द एग्जाम। एंड एक डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड कंज्यूमर मार्केट। बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल और कंज्यूमर में बेसिक डिफरेंस यही है, लाइक द परचेजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट इज डन बाय द कंपनीज, कॉरपोरेशंस, और कंज्यूमर मार्केट नॉर्मल मार्केट है जहाँ पे हम लोग नेचुरली जाके परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लर्न कर सकते हैं फॉर द एग्ज़ाम फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। यहाँ पे बहुत ही कम बायर होते हैं एंड बल्क में परचेज करते हैं, इन लार्ज क्वांटिटी। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप विद द सप्लायर ये भी एक डेवलप हो जाती है, प्रोफेशनल बाइंग होती है यहाँ पे। एंड कुछ एक होते हैं यहाँ पे जोग्राफिकल कंसंट्रेशन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड ऑल दैट। डिराइव्ड डिमांड होती है इसके अंदर, जो डिमांड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। एंड लास्टली इन इलास्टिक, द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज इज इन इलास्टिक, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्राइस चेंजेस। ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट आर देयर इन इंडिया। तो सबसे पहले जैसे इंडस्ट्रियल मार्केट हो गया, रीसेलर मार्केट है जहाँ पे प्रोडक्ट को रीसेल किया जाता है, गवर्नमेंट मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट बाइंग एंड सेलिंग करती है, एंड इंस्टीट्यूशनल मार्केट जहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस, तो वो परचेज करती है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन। एज वी नो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एंड इससे फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी ईच एंड एवरी पार्ट को ईजिली एनालिसिस करती है, एंड अकॉर्डिंगली it plans to sell its product in different types of market. So that is what is written here in the importance of market segmentation. So इसके effective for an effective market segmentation, ये जो market segmentation है basically it is done by the multinational companies. तो जो बड़ी companies हैं तो वो डिवाइड करती है। अगर मार्केट बहुत बड़ा है तो उसको डिफरेंट सेगमेंटेशंस में, डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करती है। सो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि इट शुड बी मेजरेबल। द मार्केट स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ द मार्केट शुड बी मेजरेबल, एंड द साइज ऑफ द मार्केट शुड बी सफिशिएंट। थोड़ा बड़ा होना चाहिए सो दैट वी कैन
स्टडी इट प्रॉपरली। एंड मार्केट का जो फोर्सेस है दैट शुड बी स्टेबल, आई मीन द डिमांड एंड सप्लाई साइड, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल टू द कंपनी, एंड इट शुड बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मीन्स जो आप डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं मार्केट को, तो उनके अंदर डिफरेंस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी होमोजीनियस, राइट, एंड इट शुड बी एक्शनेबिलिटी, आई मीन यहाँ पे कंपनी एक्शंस ले सकती है, इजीली फॉर्मुलेट कर सकती है अपनी पॉलिसीज़, तो लाइक दैट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम, द डिफरेंट बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। कंपनी किस तरीके से डिवाइड करती है मार्केट को? तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिक, जैसे कि ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन एंड साउथ जोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सम एरिया, जोग्राफी, तो डिवाइड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक रीजन ऑन द बेसिस ऑफ एज, लिटरेसी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लाइक दैट। ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स डिवाइड कर सकती है मार्केट को अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, देयर बिलीव्स, देयर ट्रेडिशन एंड सोशल कल्चरल। तो यहाँ पे सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोसाइटी, देयर नॉर्म्स, देयर एथिक्स, सो मार्केट कैन बी डिवाइडेड। एक शॉर्ट नोट कर सकते हैं ऑन मास कस्टमाइजेशन। ओके, आगे चलते हैं यूनिट 6 में, मार्केट टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। मार्केट टारगेटिंग मीन्स इसके नाम में ही है मार्केट टारगेटिंग, दैट मीन्स द कंपनी इज टारगेटिंग वन स्पेसिफिक मार्केट एंड ट्राई टू collect the information about the taste and preferences, the prices, the competitors, उसके बारे में। तो मार्केट को टारगेट करना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले होते हैं। ओके, तो इसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसीड्योर्स हैं मार्केट टारगेटिंग के। तो इसके अंदर कंपनी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग कर सकती है, या फिर डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर सकती है, या फिर अनडिफरेंशिएटेड, एंड देन यू विल चूज ए प्रोडक्ट। तो ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं मार्केट टारगेटिंग के। तो कॉन्सेंट्रेटेड में यहाँ पे एक बेसिक पर्टिकुलर मार्केट को कॉन्सेंट्रेट करके टारगेटिंग की जाती है, एंड डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट मार्केट्स हैव डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, and undifferentiated is just the reverse of differentiated, and then we choose a product, like what type of product should be launched in a particular market, and then we will positioning, how you will, like एक बार आपने मार्केट को सेगमेंट कर दिया, उसके बाद में टारगेट फिक्स कर लिए, एंड देन यू विल ट्राई टू पोजीशन योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू पोजीशन इट वेल। तो ये तीन टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकती है कंपनी। एक तो कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी, जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ में जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनको कंपेयर किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशनिंग की जाती है। एंड डिफरेंशिएशन, जहाँ पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। एंड देन एक और है सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पे कंपनी अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये तीन टाइप की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग में। कभी कभी इसके ऊपर आपको डिफरेंसेस भी मिल सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी मिल सकते हैं। एंड वन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द पोटेंशियलिटी ऑफ ए टारगेट मार्केट। आपने एक मार्केट चूज कर लिया, एंड हाउ यू विल ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियलिटी कि इस मार्केट के अंदर आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यू विल ट्राई टू एनालाइज द मार्केट एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ, वहाँ पे जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वी कैन ईजिली आंसर। ओके, नाउ कम्स प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये चार टाइप के प्रोडक्ट हैं जो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल हो गए टेंजिबल गुड्स, सर्विसेज इंटेंजिबल। अगेन कंज्यूमर गुड्स को भी हम लोग ये तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 11-12 में किया भी है, तो थोड़ा बहुत शायद आपको मालूम भी होगा। इजी है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वंस यू गो थ्रू यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। देन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल के बारे में जानते हैं, सर्विसेज के बारे में जानते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेसिकली जो कैपिटल गुड्स जिसको बोला जाता है, एंड दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स।
एंड एक डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस और इश्यूज इन द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज आर इनसेपरेबल, उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सर्विस जो प्रोवाइड करता है, सर्विसेज में भी हेट्रोजेनियस, जैसे कि डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंट सर्विसेज है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कभी भी होमोजीनियस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। आई मीन द डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज, so they teach in a different way, in a different the process, so like that. And services are intangible in nature, so that makes it very difficult for the services to sell, and you cannot own ownership of services. As in the case of goods, हम लोग ownership ले सकते हैं लेकिन services में नहीं ले सकते। Services are perishable, once you use it, it will perish, again you have to pay and take the services. Okay, then we have problems in measuring a service. It's very difficult because ना तो सर्विसेज को क्वांटिटी में या क्वालिटी में डिवाइड कर सकते हैं, तो क्वालिटी में मोर और लेस हम लोग डिवाइड कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट इन यूनिट्स और इन एनी सर्टन क्वांटिटी। ओके, यूनिट 8 की बात करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। Whenever a company plans to launch a new product, तो क्या क्या स्टेप्स लेती है। तो सबसे पहले कंपनी को आइडिया आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अपने को मैन्युफैक्चर करना है। देन आइडिया स्क्रीनिंग होती है, वेदर जो आइडिया है उस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं, उसकी थ्योरी, उसको एक्चुअली उसकी डेमो तैयार करते हैं, और उसके बाद में उसको मार्केट में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए, उसकी कमर्शियलाइजेशन की जाती है, एंड लास्टली इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में मालूम चलता है कि वेदर द प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट और नॉट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एवरी प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड पासेस थ्रू अ डेफिनेट लाइफ साइकिल। तो हर प्रोडक्ट के ये 4 स्टेजेस होते हैं, एंड नेचुरली हर प्रोडक्ट मर भी जाता है आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहला उसका स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है एंड इट ट्राइज टू कैप्चर द मार्केट। एंड सेकंड स्टेज होती है ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे वो ग्रो करता है, काफ़ी सेल ग्रो करती है, कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होती है। एंड थर्ड स्टेज में मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे प्रोडक्ट काफ़ी टाइम तक मार्केट में चल लिया होता है एंड लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट द प्रोडक्ट। एंड इसके बाद जो स्टेज आती है डिक्लाइनिंग स्टेज, जहाँ पे प्रोडक्ट धीरे धीरे इट लूजेस द मार्केट बिकॉज द कॉम्पिटिटर्स बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर इन द मार्केट, एंड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द प्रोडक्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट। ये डायग्राम बना सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम, व्हाई डू न्यू प्रोडक्ट फेल इन द मार्केट। तो कंपनी कभी कभी नए प्रोडक्ट लॉन्च तो करती है, लेकिन कभी कभी फेल भी हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर इनसफिशिएंट एनालिसिस अगर मार्केट की करते हैं तो दैट बिकम्स अ रीज़न। अगर प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी की प्रॉब्लम है सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, आई मीन रीज़न फॉर द फेलियर। देन पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर कंपनी यूज़ करती है फॉर द न्यू प्रोडक्ट, इट मे फेल। देन प्राइसिंग प्रॉब्लम, अगर प्राइसेस को बहुत हाई या बहुत लो अगर कर दिया तो भी प्रोडक्ट फेल हो सकता है। यू मस्ट फिक्स द प्राइसेस कॉन्शियसली। देन पुअर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, अगर प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ही सिंपल रीज़न है, तो फेल हो सकता है। अगर पुअर टाइमिंग्स, अगर गलत टाइम पे अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करती है कंपनी, सो दैट ऑल्सो मे बी अ रीज़न फॉर द फेलियर। देन पुअर आफ्टर सेल सर्विस बाय द कंपनी, इसकी अगर रॉन्ग पोजिशनिंग करते हैं कॉम्पिटिटर के साथ में, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड देन प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं इन योर आंसर, लाइक व्हाई डू न्यू प्रोडक्ट्स फेल इन द मार्केट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग एज वी नो, गिविंग अ नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट। जैसे कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, रेमंड, कॉलगेट, लिवाइस, तो इनके एक पर्टिकुलर तरीके से इनके सिंबल हैं, नाम है, एंड इसके बहुत एडवांटेजेस हैं कंपनी को। एंड ब्रांडिंग के लिए कंपनी बहुत सारा एक्सपेंसेस करती है, तो बिकॉज एक बार ब्रांड होने के बाद में द कंपनी टेक्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड, तो इसके बारे में भी आप कर सकते हैं। एक डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन इंडिविजुअल ब्रांडिंग
and umbrella branding. So this difference also works very well. Then comes packaging. What is packaging? As we know, like designing a container for a product is called packaging. And why this packaging is important? Because it carries the product description, कि product की जो main जो उसके features हैं उसके अंदर आ जाते हैं, product की image, product की value, उसका self display. तो ये कुछ एक उसके elements हैं. And functions of packaging, ये बिल्कुल करना है for the exam, because it protects the product from damage and it makes the product attractive. It appeals to the customer. Then it also helps in the performance of the product in the market. It is easy to handle the product, that is convenience. And also packaging makes it cost effectiveness, makes the product cheaper. ओके कुछ एक पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो कंपनी चूज़ करती है, इसके बारे में भी आप कर सकते हैं. देन वाई पैकेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके इम्पॉर्टेंट रोल. ओके देन कम्स लेबलिंग. लेबलिंग इज पुटिंग a small label indicating the price, weight, size, instructions, the प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो वो सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं हम लोग लेबलिंग में. एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके यूनिट 10 में चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग. सो प्राइसिंग के आपको ध्यान में रखने हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइसिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड बिफोर प्राइसिंग कंपनी को ये सारे चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं. मेनली फर्म के ऑब्जेक्ट क्या हैं, कंपनी की मेन ऑब्जेक्ट क्या है, वेदर टू सेल मोर और टू अर्न मोर. एंड और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग की. देन कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स के क्या प्राइसेस हैं, अकॉर्डिंगली द कंपनी शुड फिक्स द प्राइसेस. डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की मार्केट में, अगर डिमांड ज़्यादा है तो यू कैन फिक्स अ लिटिल बिट हायर प्राइसेस. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा है, टैक्सेस कैसे हैं. ओके प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के मेन ऑब्जेक्टिव्स तो सिंपल है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये तो रहता ही रहता है, हर कंपनी का होता है. मैक्सिमम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये भी सिंपल है. मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होनी चाहिए मार्केट में. अचीविंग अ गुड मार्केट शेयर, बीटिंग द कॉम्पिटिटर्स. एंड देन द pricing should be such that the product should survive in the market for a longer period of time and prevent competition. जो नए competitors हैं उनको आने में prevent करे. And price stabilization, it should not fluctuate, बहुत ज़्यादा fluctuation नहीं होना चाहिए. तो product के prices को stabilize करने में भी बहुत important होता है. Okay. Then comes the different methods of price determination. तो ये 3 मेथड हैं, कॉस्ट बेस्ड, बायर बेस्ड एंड कंपटीशन बेस्ड. तो ये 3 टाइप की मेथड्स हम लोग कंपनी फॉलो करती है वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस. तो कॉस्ट प्राइसिंग अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सिंपल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है. एंड दूसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस करती है टू फाइंड द पॉइंट वेयर द कंपनी नेदर अर्न्स नॉर लूजेस. तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. तो जनरली कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही प्राइस फिक्स करती है सो दैट इट कैन अर्न सम मनी. देन बायर बेस्ड में व्हाट इज परसीव्ड बाय द बायर एंड डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके प्राइसिंग को डिफरेंट किया जाता है. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन बेस्ड प्राइसेस, जो ऑनगोइंग प्राइसेस है कॉम्पिटिटर के तो उसके बेसिस पे कर सकती है, या फिर सील्ड बिड प्राइसिंग कर सकती है. तो ये ध्यान रखना है. देन व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटर, मोर और लेस एक जैसे ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है इनके अंदर. तो 1-2 कॉन्सेप्ट भी अब अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो आई थिंक द जॉब इज़ डन. ओके देन प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज. तो इसके अंदर ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ ज्योग्राफिक प्राइसिंग एंड ज्योग्राफिक प्राइसिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इसके अंदर ये FOB ओरिजिन प्राइसिंग, यूनिफॉर्म डिलीवरिंग प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, बेसिक पॉइंट प्राइसिंग, फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग. तो ये 5 मेथड को आपको हाईलाइट करना है. ओके देन मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इन न्यू प्रोडक्ट. अगर न्यू प्रोडक्ट की अगर प्राइसिंग करते हैं तो थोड़ी सी
कंपनी को डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहला है प्राइस स्कीमिंग, जहाँ पे कंपनी थोड़ा सा हायर प्राइसेस फिक्स करती है इन द इनिशियल स्टेजेस, एंड फिर धीरे धीरे एज द प्रोडक्ट इज़ नोन इन द मार्केट उसकी प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाता है। देन जस्ट उल्टा है इसका मार्केट पेनिट्रेशन, जहाँ पे प्रोडक्ट को जस्ट मार्केट में पेनेट्रेट करने के लिए प्राइसेस कम रखी जाती है इनिशियल स्टेजेस में, एंड देन इट इंक्रीजेस। देन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर सकती है कंपनी, जहाँ पे प्रोडक्ट के वैल्यू को इम्पॉर्टेंस देके प्राइसिंग को फिक्स किया जाता है, हायर वैल्यू हायर प्राइसेस। साइकोलॉजी हो सकती है, आई मीन 99, 199, 499, ये कुछ एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। कॉस्ट प्लस, ये बहुत सिंपल है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग होती है कभी कभी, जहाँ पे मार्केट में जो फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली द प्राइसेस आर फिक्स्ड। एंड ज्योग्राफिकल, डिफरेंट एरियाज हैविंग डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन मार्केट स्कीमिंग स्ट्रैटेजी एंड मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। ओके, देन कम्स मार्केटिंग मिक्स। इसके बारे में मैं जस्ट आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि मार्केटिंग मिक्स में ये 4 पीस को ध्यान में देना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो इसके कंप्लीट प्रोसेसेस, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। देन वी हैव रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस। तो रेगुलेशन में डिफरेंट एक्ट्स आर देयर, जैसे MRTP एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है। तो इसके बारे में आपको मिल सकता है क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट नोट पे। एक रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट नोट कर सकते हैं। एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये भी बहुत पुरानी एक्ट है, 1955 में बनी थी, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का उनको दर्जा दिया गया था। एंड देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यूनिट 13। तो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज इंटरमीडियरीज इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में कर सकते हैं। एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच आर एडॉप्टेड बाय द कंपनी। इस पे आपको प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो ये 4 मेथड को आपको ध्यान में देना है। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है। देन मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। थर्ड में और लंबा हो जाता है चेन, तो यहाँ पे होलसेलर बीच में आ जाते हैं। एंड फोर्थली और भी लंबा, जहाँ पे एजेंट बीच में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सब इंटरमीडियरीज हैं, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं प्रोडक्ट की। और इनके रोल्स, रोल ऑफ मिडलमैन और इंटरमीडियरीज इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट को ग्रुप करना, उनको एलोकेट करना, उनको प्रमोट करना मार्केट में, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्क लेते हैं, फाइनेंस वगैरह, उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं मिडलमैन। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड करता है, वेदर इट इज़ ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। देन नेचर ऑफ द फर्म, वो कैसा है, कंपटीशन कैसा है, एंड मार्केट का साइज कैसा है। तो लाइक दिस। देन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन चैनल मैनेजमेंट। जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हाउ यू विल व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन दैट। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है डिफरेंट इंटरमीडियरीज एंड उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको मोटिवेट करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनकी इवैल्यूएशन करनी है परफॉर्मेंस की, एंड देन यू टेक एनी फीडबैक्स, आई मीन मॉडिफाइंग द चैनल अरेंजमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो फॉलो करती है कंपनी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके स्क्रीन पे है, दैट इज़ चैनल कन्फ्लिक्ट। कभी कभी ये जो इंटरमीडियरीज हैं, मिडलमैन हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, या फिर मिडलमैन और कंपनी के बीच में कुछ एक मन मुटाव हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वेरी कॉमन इन बिजनेस। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस ऑलवेज आता ही है एग्जाम में। दैन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल कन्फ्लिक्ट। तो ये 3 टाइप के आपके सिलेबस में हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मल्टीपल। तो इनको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं फॉर द एग्जाम। डिफरेंट कॉजेज व्हाई दिस कन्फ्लिक्ट हैपन्स। तो इसके अंदर गोल से रिलेटेड हो सकता है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। अगर मिडलमैन के रोल अगर फिक्स नहीं है, अगर कंफ्यूजिंग है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। डिफरेंट मार्केट परसेप्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज करती है। एंड समटाइम्स द प्रोड्यूसर डोमिनेट ओवर द इंटरमीडियरीज, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। चेंज
अगर करती है कंपनी तो दैट मे बी रेसिस्टेड बाय द मिडलमैन. देयर मे बी सम वीक कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द मिडलमैन एंड कुछ एक मिस अलाइनमेंट हो सकते हैं मार्केटिंग के. कंसिक्वेंसेस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इज़ बैड. उसके नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ते ही पड़ते हैं. तो ये भी एग्जाम्स के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं. तो ये कुछ एक उसके कंसिक्वेंसेस हैं. एंड हाउ यू विल मैनेज, आई मीन व्हाट स्ट्रैटेजी यू विल यूज टू मैनेज द चैनल कन्फ्लिक्ट. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो नीड्स योर अटेंशन. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की बात करते हैं. इसके मेन इंपॉर्टेंट रोल्स जस्ट नाउ आई वाज टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडलमैन. तो इसके अंदर फंक्शनल एंड मर्चेंट, तो ये दो टाइप के जो मिडलमैन है इसके बारे में आप कर सकते हैं. अगेन फंक्शनल मिडलमैन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. तो ब्रोकर्स, फैक्टर्स, कमीशन एजेंट्स, ऑक्शनर्स, ऐसे बहुत सारे हैं. तो ये आप हाईलाइट कर सकते हैं. देन मर्चेंट मिडलमैन. ओके, यूनिट 15 की बात करते हैं, मार्केट लॉजिस्टिक्स. इससे भी क्वेश्चन 100% आपको मिल सकता है. मार्केट लॉजिस्टिक्स दैट मीन्स मूविंग द गुड्स, डिलीवरिंग द गुड्स टू द customers properly. इसके मेन functions, how this marketing logistics work, and इसके different important objectives, like how it satisfies the customers and how it helps in reducing the cost for the product. Then the different logistics approaches. तो इसके अंदर दो approach हैं, total system and total cost. तो इसका difference भी आ सकता है या फिर इसको long questions में भी आपको मिल सकता है. यूनिट 16 की बात करते हैं, मार्केट कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केट कम्युनिकेशन. एज वी नो, एज ए मार्केटिंग मैनेजर यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ योर सेल्समैन एंड अदर मिडलमैन. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी के सक्सेस के लिए. एंड द डिफरेंट प्रोसीड्योर्स ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन. तो इसके अंदर वैसे ही सेम चीज़ें हैं, आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस, ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइनिंग द मैसेज, सिलेक्टिंग ए कम्युनिकेशन चैनल, जो एक कम्युनिकेशन में नॉर्मली होता है. तो दैट इज़ उसी चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं. एंड डिफरेंट बजटिंग मेथड्स ऑफ दिस मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट ऑल्सो यू कैन रिवाइज. एक शॉर्ट नोट कर सकते हैं IMC पे. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के लिए. एंड इसके डिफरेंट टूल्स. ओके, तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है ये, मतलब डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं. एंड ये सारे मार्केट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम के टूल्स हैं. तो इसके अंदर सबसे पहला तो ये पर्सनल सेलिंग, जो सेल्समैन जो जॉब करता है, दैट कम्स अंडर पर्सनल सेलिंग. एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द सेलर एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द बायर. तो ये दोनों हेड्स में आपको कर सकते हैं. देन कुछ एक इसके सूटेबिलिटी कर सकते हैं कि वेयर दिस थिंग्स आर सूटेबल. एंड दिस वन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस. एक सेल्समैन जब सेल करता है तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ही फॉलोज. तो सबसे पहले तो वो प्रिपेयर करता है अपने आप को. देन ढूंढता है द प्रोबेबल कस्टमर्स. एक प्री अप्रोच करता है जहाँ पे कस्टमर्स को अप्रोच करता है, बात करता है उससे. देन स्टार्ट्स अप्रोच, जहाँ पे डायरेक्ट बातें होती है प्रोडक्ट के बारे में. डेमोस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. देन कोई भी अगर ऑब्जेक्शन होता है या क्वेरीज होती है उसको हैंडल करता है. देन ही ट्राइज टू क्लोज द सेल एंड फॉलो अप में, आई मीन आफ्टर द सेल सेल्समैन को ये भी ज़रूरी है कि फीडबैक ले कस्टमर का. एंड दीज आर द डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सेल्समैन. तो ये इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं. सेल्स प्रमोशन, इसके मेरिट्स, इसके टूल्स. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल वन, नॉट वेरी डिफिकल्ट. ओके, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी की बात करते हैं. एडवर्टाइजिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आई डोंट थिंक यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. इसके मेन इंपॉर्टेंस एंड डिमेरिट्स दोनों ही आपको करने हैं फॉर द एग्जाम. एंड डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, I don't think this is also very not very difficult job for you. And processes or decisions to be taken for an advertising program. तो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम जब कंपनी लॉन्च करती है तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट. तो सबसे पहले तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या हैं,
वेदर टू सेल मोर, प्रॉफिट मोर, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उसका बजट क्या है, क्या मैसेज देना चाहती है कंपनी कस्टमर्स को। देन मीडिया सिलेक्ट करती है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। देन मेजरमेंट ऑफ द इफेक्टिव डिसीजन, आई मीन इवेलुएशन। ओके, पब्लिसिटी पे भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलते हैं। एंड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी का डिफरेंस कर सकते हैं। एंड दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करना होता है कंपनी को, पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली इट हैपन्स विदाउट पेमेंट। तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये दोनों आपको करने हैं फॉर द एग्जाम। द नेक्स्ट वन इज़ एमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग। तो इसके अंदर रिलेशनशिप मार्केटिंग ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है। लाइक द कंपनी ट्राइज टू मेक रिलेशनशिप, आई मीन गुड रिलेशंस विद द कस्टमर्स, एंड ऑन दैट बेसिस इट ट्राइज टू सेल। तो कुछ एक स्ट्रैटेजीज हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग की जिसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं एंड इसके मेन एडवांटेजेस। सो दिस थिंग्स यू कैन लर्न। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ई मार्केटिंग, जहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से भी हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं एंड इसके मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन वी हैव वन अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन मार्केटिंग, जहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलप करना एंड उसकी मार्केटिंग करना। सो दैट कम्स अंडर दिस बैनर। एंड हाउ द कंपनी कैन डू ग्रीन मार्केटिंग, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चंस आपको करना है फॉर द एग्जाम। कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं ग्रीन मार्केटिंग के। ओके, एक और मार्केटिंग है सोशल मार्केटिंग, दैट इज़ फॉर द सोसाइटी। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी मार्केटिंग कर सकती है कंपनी। ये भी रिसेंट कॉन्सेप्ट है, नॉट वेरी ओल्ड। एंड ये है 4 P's ऑफ सोशल मार्केटिंग। तो सेम मार्केटिंग मिक्स के ही है। ओके, रूरल मार्केटिंग, ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी राइज कर रहा है इंडिया में, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आर ट्राइंग टू फोकस इन द रूरल और आई मीन द विलेज, इंडियन विलेजेस। तो उनको टारगेट कर रही है। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट देन like that. Okay, the next I think that's all. Like, I mean, these are the important units and chapters that you should focus on before going to the exam, and also try to revise the previous year's questions. Okay, thank you very much for watching this. Best of luck for the exam.